Hello friends, today in this video we will discuss some more theorems on group theory and some examples. Yesterday in our previous video we have discussed some theorems such as inverse. If the inverse of A is A inverse, then inverse of A inverse is A. We have proved this theorem. We also proved the inverse of each element in a group if exists is unique and the identity element in a group is unique. Today we will continue from where we left yesterday. We will start from a theorem 4. The inverse of product of two elements is equals to the product of their inverses taken in reverse order. That is what we have to prove. If A and B are any two elements of G, then the inverse of product must be equals to B inverse A inverse for all AB belongs to G. This is also called reversal rule. This is an important theorem for the BSc student for their exam point of view. So basically what we have to prove? We have to prove the inverse of product of two elements is equals to their inverses taken in the reverse order. It is also called reversal rule, and it means if AB are any two elements and AB is their product, then inverse of their product is AB inverse must be equals to B inverse A inverse. We will prove this. Let G be a group. And E be the identity in G. Let we have taken two elements, A, B belongs to G. Since G is a group and A, B are any two elements of G, so A, B belongs to G. This will implies A inverse belongs to G and B inverse belongs to G, because in a group each and every element has its unique inverse. This will implies इससे क्या होगा A into A inverse equals to E equals to A inverse A, and B into B inverse equals to E equals to
B inverse B. This is by the definition of inverse. एज हमें पता है जी कोई ग्रुप है और हमने माना ए बी जी के कोई दो एलिमेंट है, क्योंकि जी एक ग्रुप है तो अगर कोई एलिमेंट ए जी में बिलोंग करता है तो इट मीन्स उसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। कोई एलिमेंट बी ग्रुप जी में है तो इट मीन्स उसका इनवर्स भी जी में होगा। जब ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ई विच इज आल्सो इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। Similarly, B into B inverse must be equals to E and equals to B inverse B. Now let us take हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। We will use this concept. If A inverse is the inverse of A, then A into A inverse must be equals to E. In the same way, if B inverse A inverse is the inverse of AB, then AB into B inverse A inverse must be equals to identity. So we will take now we have taken AB into B inverse A inverse. If this product will be equals to E, then we say that B inverse A inverse is the inverse of AB, which is equals to AB into B inverse into A inverse. ये हमने कैसे किया? Because G is a group, so it satisfies associative law. Because G is associative. Now we can write A B inverse into A inverse, again by using associative law. A into E into A inverse, because यहाँ पे हमें पता है B into B inverse किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। ये इसका मतलब A into A inverse, ये भी किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। इसका मीनिंग हमने क्या प्रूव किया? हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो हमने क्या किया? अगर ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। ए बी डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ई, सो वी हैव टेकन ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस implies a we can write it as a b into b inverse and into a inverse, because G is a group, so associative law must be satisfied again by using associative law, and this is by the definition of inverse and identity. So we get AB into B inverse A inverse equals to E. This implies AB into B inverse A inverse equals to E. नो अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करेंगे। अभी हमने लिया था ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, अब हम लेंगे नो लेट अस टेक बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें पता है अगर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, देन ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ई।
अगर हम इनवर्स की राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आइडेंटिटी आता है, अगर हम इसे ए इनवर्स इंटू ए करते हैं तब भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हमने पहले किया राइट हैंड साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई की, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स लिया और साथ में ए बी का प्रोडक्ट। तो ये किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, which will be equals to b inverse a inverse into a into b, which will be equals to b inverse identity into b। ये हम सब कैसे कर रहे हैं, बिकॉज जी इज ए ग्रुप सो एसोसिएटिव लॉ मस्ट बी सेटिस्फाइड, जैसे हमने ऊपर किया है सेम उसी प्रोसेस में हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब क्या होगा, बी इनवर्स इंटू बी इक्वल्स टू ई। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल्स टू ई। सपोज हमने इसे इक्वेशन 2 माना और इसे हमने माना इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन एन वन एंड टू हम क्या देखते हैं, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी फाइंड दैट बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है 2 या 5 मार्क्स में। क्या प्रूव किया हमने, इसे रिवर्सल रूल भी बोलते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव रिवर्सल रूल। स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी जी के कोई दो एलिमेंट है इसमें, देन अगर हम उनके प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करते हैं वो इक्वल होगा product of their inverses taken in the reverse order. It means AB inverse must be equals to B inverse A inverse. सिंपली हमने इसे प्रूव करने के लिए क्या किया, जी कोई ग्रुप है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप में, हमने माना ए और बी जी में कोई दो एलिमेंट्स हैं, जी ग्रुप है तो सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब ए कोई एलिमेंट है तो ए इनवर्स उसका इनवर्स होगा, बी कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स बी इनवर्स होगा। It means A into A inverse must be equals to E. Similarly, B into B inverse must be equals to E. अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स, यानी कि प्रोडक्ट ए बी अगर हम सिंगल एलिमेंट लेते हैं उसके प्रोडक्ट करते हैं तो देन उनका इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू देयर इनवर्सेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ए बी इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। So we have taken A B into B inverse A inverse. Then we have applied associative laws. We will get identity. In the reverse process, B inverse A inverse into A B, we again will get identity. Hence, A B inverse must be equals to B inverse A inverse. And associative law is, sorry, reversal rule is proved. Or we can say that the inverse of the product of two elements in a group G is the product of their inverses taken in the reverse order. This is very easy and important theorem. You can do it. Now we will take some example. Question 1. Show that the set of a set Q plus of positive rational numbers
is an abelian group with respect to operation defined by a star b equals to ab upon 2 for all ab belongs to q plus। क्या प्रूव करना है हमें शो करना है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2। अब तक हम देख रहे थे हम सिंपली एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट प्रूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 2। इसे हम यूजर डिफाइंड ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो एबेलियन ग्रुप दिखाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहले की तरह हमें 5 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है by taking the set of q plus of positive rational numbers। very easy। suppose q plus equals to, हमें पता है रेशनल नंबर का सेट कैसा होता है, p upon q टाइप such that q not equals to 0 and pq belongs to i plus। pq यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या दिखानी होगी हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। हम कोई भी एलिमेंट लेंगे दो q प्लस में, सपोज हमने माना ए बी बिलोंग्स टू q प्लस, तो हम उनके बीच में स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ए स्टार बी इक्वल्स टू, हमने माना ए और बी दो कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं जो q प्लस में बिलोंग करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कब मानी जाएगी, अगर हम उनके बीच में स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आएगा अगर वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। हमने ए स्टार बी किया तो हमें पता है रिजल्ट क्या आएगा, ए बी बाई 2। ए बी बाई 2 क्लियरली है क्या है, जब ए बी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे तो ए बी अपॉन 2 ऑब्वियसली है रेशनल नंबर, इट मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू q प्लस। दिस implies closure properties satisfied। second property is associative law। associative ये भी बड़ा सिंपल है, सेम वे में हो जाएगा इजीली। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू q प्लस, देन ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो अगर हम इस साइड से लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा यहाँ पे, बी सी अपॉन 2, क्योंकि जब भी हम स्टार दो पॉजिटिव रेशनल नंबर के बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हेयर उन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है एंड डिवीजन बाय 2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्टार बी सी बाई 2। फिर अब इन दोनों के बीच में जब स्टार अप्लाई होगा तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी सी अपॉन 4। इन द सेम वे अगर हम इस साइड से करते हैं तो ए बी अपॉन 2 स्टार सी। अब जब हम इन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ए बी सी अपॉन 4। तो दोनों साइड से ये हमारी वैल्यूज इक्वल आती हैं। और भी प्रॉपर वे में लिख सकते हैं हम इसे, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप प्रॉपरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करके इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ इज associative law is
satisfied. Third property is existence of identity. Existence of identity. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपको पहले ही मैंने बताया है. E belongs to Q plus be the आइडेंटिटी एलिमेंट. जैसे हमने इंटीजर्स के सेट में 0 फाइंड कर लिया था, या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले सेट में 1 हमने बोल दिया था, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी होगा. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि कौन आइडेंटिटी एलिमेंट हो. वी कैन नॉट फाइंड, सो वी हैव टू सोल्व इट. E belongs to Q plus be the identity element in Q plus if हमें पता है E को आइडेंटिटी कब बोलेंगे, when A star E must be equals to A. A star E equals to A. So A star E जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा तो क्या आएगा, A E अपॉन 2 इक्वल्स टू A. यहाँ से किस इक्वल होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे E इक्वल्स टू 2 बाय कैंसिलेशन लॉ. कैंसिलेशन लॉ अभी हमने प्रूव नहीं किए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव करेंगे. तो E इक्वल्स टू 2 भी हमें पता है रेशनल नंबर होता है, बिलोंग्स टू Q प्लस. दिस इम्प्लाइज E इक्वल्स टू 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी एक बार फिर देखते हैं. आइडेंटिटी हमने कैसे फाइंड की, हम किसी भी एलिमेंट E को आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब हम किसी भी एलिमेंट के साथ उसे ऑपरेट करते हैं तो हमें सेम एलिमेंट मिल जाना चाहिए. यानी कि इफ A इज द एनी एलिमेंट देन E is said to be identity if A star equals to A. फिर हमें यहाँ पे पता है बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन है, जब भी हम दो एलिमेंट के बीच स्टार अप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट और डिवीजन बाय 2 हो जाता है. ए अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल, इसका मतलब ए इक्वल्स टू 2 भी रेशनल नंबर होता है, बिकॉज हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 की फॉर्म में, तो रेशनलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ई इक्वल्स टू 2 आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर. इसका मतलब ई इक्वल्स टू 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू प्लस, हेंस आइडेंटिटी इन क्यू प्लस एग्जिस्ट. नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स हमें पता है B बिलोंग्स टू Q प्लस इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू Q प्लस इफ किसी एलिमेंट B को A का इनवर्स कब बोलेंगे, अगर A स्टार B मस्ट बी इक्वल्स टू E, यानी कि AB अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2. E की जगह 2 क्यों लिख दिया हमने, बिकॉज 2 इज द आइडेंटिटी. 2 is the identity in Q plus.
यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू 4/a। 4/ab क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। दिस implies b equals to 4/a is the inverse of a belongs to q plus. This implies inverse of each element in set of positive rational number exist. अब हमारी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब ये हमारा ग्रुप हो गया है। एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बड़ा सिंपल है, वेरी इजीली सेटिस्फाई। हमें सिंपली पता है, हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, उनके प्रोडक्ट ए डॉट बी करके कर लें या बी डॉट ए करके कर लें, वो इक्वली आता है। तो हमने माना लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ऑलवेज ये ट्रू होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन टू इक्वल्स टू बी ए अपॉन टू। पॉजिटिव नंबर है, कैसे भी हम मल्टीप्लाई करें वो इक्वल ही आएगा। दिस इम्प्लाइज कम्यूटेटिव लॉ commutative law is satisfied। अब हमारी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं सेट ऑफ Q plus is an abelian group। Hence prove। एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं हम अभी यहाँ पर। जैसे हमने बताया हमारी पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमने इसे एबिलियन ग्रुप बोला। अगर हमारी फर्स्ट टू प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई होंगे देन सेमी ग्रुप। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी तो मोनोइड। फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ग्रुप, एंड इफ ऑल फिफ्थ then it is said to be abelian। So today in this video we have discussed one very important theorem called reversal rule। A B inverse must be equals to B inverse A inverse, and one example, this is also very important question for the examination point of view। काफी बार ये पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ में नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैंसिलेशन लॉज और कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।